صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا ہے اور پھر اپنے اہل سنت مسالک کے اندر جو بعض مشترکات ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باطن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہر ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جو باطن ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ظاہر والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلف، علم نشرہ کا سینہ، چھوڑ دیں علم نشرہ کا سینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور کے اوپر کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، فضا میں خنکی بھی موجود تھی، لیکن ہوا میں ایک خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی کہ فضا معطر ہوتی چلی جاتی تھی۔ میں چپکے سے اٹھا، اس خوشبو کا تعاقب کرنے لگا، وہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اس خوشبو کے تعاقب میں چلنا شروع ہوتا ہوں۔ کچھ عرصہ، کچھ وقت گزرتا ہے، میں اپنے آپ کو مسجد النبوی کے اندر پاتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے آمنہ کے لال در یتیم سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے مسجد النبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ کہا آپ کے چہرے پہ ایک نظر پڑی، آپ کے چہرے پہ ایک نظر پڑی، یہ میرے نبی کا ظاہر ہے۔ ابھی دوسری نظر آسمان کے چاند پر پڑی اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا تو آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا۔ یہ نبی کا ظاہر ہے۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں وہ چمکتا ہوا چاند تھا کہ دمکتا ہوا سورج تھا۔ جب آیا اپنے ساتھ برکتوں کو لے کے آیا، اور جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، حسن یوسف کا بڑا تذکرہ سنا۔ حسن یوسف کے اندر ہم نے اس بات کو پڑھا، سب جانتے ہیں کہ یوسف کے چہرے کے اوپر عورتوں کی نظر پڑی اور نظر ٹک گئی اور ہاتھ کے اوپر چھریوں کو چلا لیا۔ ایک حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جتنے بھی تذکرے احادیث میں ملتے ہیں، اٹھائیے، ان میں سے ایک نظر آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو نبی کے چہرے پہ پڑی اور ٹک گئی۔ حسن ایسا ہے کہ نبی کے چہرے پہ پڑی اور جھک گئی، اور جھک گئی۔ اور صرف حسن ایسا ہے، صرف ظاہر ایسا ہے، صرف ظاہر، ابھی باطن کی بات نہیں ہے۔ سمامہ یمامہ کا گورنر ہے، مسجد النبوی کے پلروں کے ساتھ، ستون کے ساتھ باندھا ہوا۔ آقا کہہ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آپ سب اس حدیث کو جانتے ہوں گے، علمی مجمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ سے کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ایسا ہوا، وہ آگے جواب میں جو الفاظ کہتے ہیں ہم وہ جسارت بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ اتنی نفرت؟ اپنے دشمن کو ایک نظر اٹھا کے تو دیکھ لے، اگر میں تیرا دشمن ہی صحیح، تو مجھے دھمکیاں ہی چاہے دے رہا ہے، اپنے دشمن کو ایک نظر اٹھا کے تو دیکھ لے، پھر وہ الفاظ کہے۔ رسول اللہ نے کہا جا سمامہ تجھے آزاد کیا۔ اب سمامہ خود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص ایک نگاہ چہرے پہ ڈالنے ہی کا تو مطالبہ کر رہا ہے، اس میں کیا چنبے کی بات ہے؟ کہا پھر نظروں کو اٹھایا، بتائیے کائنات کے اندر اتنا مبارک، اتنا خوبصورت، اتنا نورانی چہرہ کون ہو سکتا ہے؟ سمامہ کہتے ہیں چہرے پر نظر پڑی، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ کہا آزاد تو ہو چکا تھا، قدم تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ جتنی تیزی سے سرحد پہ پہنچا تھا، دگنی تیزی سے واپس پلٹا، دوڑتا ہوا آیا۔ آقا نے کہا سمامہ ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا، واپس کیا لینے آیا ہے؟ کہا
अपना बना के छोड़ दिया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। आका आपके चेहरे को देखकर इस बात पे ईमान लेके आता हूं कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। ये नबी का ज़ाहिर है। अहले सुन्नत के तीनों मसालक का, अहले हदीस का, देवबंद का, बरेलवी का ये अकीदा है, ये कायनात का सबसे खूबसूरत चेहरा है कि नहीं? अकीदा है। अगर चेहरा सबसे खूबसूरत मानते हो, जानते हो, तो ज़ाहिर का हुलिया भी नहीं अपनाया। कितने ही भाई बैठे हैं, हर रोज़ सुबह उठते हैं, सुन्नत रसूल को ज़िबा कर देते हैं और अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह का चेहरा सबसे खूबसूरत है। अगर चेहरा सबसे खूबसूरत है तो उसके ज़ाहिर को भी अपनाना चाहिए। अगर हुलिया सबसे खूबसूरत है तो उनके ज़ाहिर को भी अपनाना चाहिए। और हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदादारी, आंचे हुबा, हमादारन तु तन्हादारी, शायर ने भी कमाल ही कर दिया। कहा बाकी नबियों के जितने मौजदात थे सारे रसूलुल्लाह की ज़ात के अंदर इस तरह कामिल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़ाहिर किया कि मूसा ने क्या किया था? समुंदर के ऊपर असा को मारा, असा समुंदर पे लगा, दरिया पे लगा, दरिया दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, लश्कर चल पड़ा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, ना लाठी है ना समुंदर है, सिर्फ उंगली का इशारा है। चांद को सिर्फ देख के इशारा किया, उंगली चांद पे लगे या ना लगे, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। मूसा हैं, असा पत्थर पे मारा, पत्थर से चश्मा रमा हो गया। ईमानदारी से बताइए, और पानी और चश्मे रमा कहाँ से होते हैं? पत्थरों ही से तो होते हैं। लेकिन जब मेरे रसूल और पैगंबर की बारी आई, ना पत्थर की हाजत है ना लाठी की हाजत है, 5 उंगलियों को सीधा किया, 5 नहरों को रमा कर दिया। आप बताइए, ईसा को मौजज़ा मिला कि वो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया करते थे। लेकिन ईमानदारी से आपने जरा गौर करना है, मुर्दे जिसको जिंदा करते थे वो अपनी जिंदगी में कलाम करता था कि नहीं था करता? इंसान ही तो कलाम करता है। उनको जिंदा करते थे, वो दोबारा कलाम करते थे, जो बात पूछनी होती थी पूछ ली जाती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो मुर्दों ने कलाम न किया। आज रसूलुल्लाह मिंबर से उतरे, वो मिंबर धाड़े मार के रोना शुरू हो गया कि रसूलुल्लाह से जुदाई है। रसूलुल्लाह ने उसको गले से लगाया और कहा, अल्लाह की कसम अगर मैं इसको सीने से ना लगाता क़यामत कायम हो जाती, ये रोता चला जाता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। लेकिन मेरे भाइयों, ये सिर्फ ज़ाहिर की बात है। जहां तक बातनी मकाम और मर्तबे का ताल्लुक है तो सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, सिर्फ एक हदीस भी इंसान को समझ आ जाए, अकीदे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं और सबका अकीदा भी यही है, आपका भी मेरा भी, कहने वाले का, सब सुनने वालों का। नबी का बातनी मकाम और मर्तबा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन एक ही रात में मस्जिद अक्सा ले गए, फ़लस्तीन ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे बड़े चमकदार, रोशन, नूरानी, सुर्ख व सफ़ेद चेहरे देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरान रह गए। जिब्रील अमीन से मुखातब होकर कहने लगे, ए जिब्रील, इतने खूबसूरत चेहरे मैंने आज तक नहीं देखे, ये कौन लोग आए? कहा, आदम से लेकर ईसा तक जितने रसूल और पैगंबर दुनिया में आए थे, आज मोजज़े के तौर पर इनको दुनिया में बुलाया गया। इनको दुनिया में बुलाया गया, ये क्या करने के लिए आए हैं? ये नमाज को अदा करने के लिए आए हैं। ये नमाज अदा क्यों नहीं करते? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इनका इमाम कौन है? उस वक्त जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांदा अक़दस के ऊपर हाथों को रखा और आपको 1,24,000 कमोबेश अंबिया के मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। ये नबी का बातनी मकाम व मर्तबा है। और अगर बात आई है तो ये भी सुन लीजिए, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे। इस रवायत के अंदर बास संदों के ऊपर मुहद्दिसीन ने एतराज़ किया, लेकिन मफहूम के ऊपर इत्तफाक किया। रसूलुल्लाह भी छोटे हैं, 2 फरिश्ते आए,
ایک نے کہا ہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نعم ہوا ہوا یہ وہی ہے، اس کے آسمان کے اوپر بڑے تذکرے ہیں، اس کے آسمان کے اوپر بڑے چرچے ہیں، یہ بڑا بلند مقام والا مرتبے والا۔ میرے بھائیو صرف اس ایک بات کو سمجھ لو، رسول اللہ کا مقام و مرتبہ سمجھ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا اس کے مقام و مرتبے کو ذرا تولو، ذرا گنو، یہ کتنا بلند ہے، یہ کتنا اعلیٰ ہے، یہ کتنا افضل ہے۔ میرے نبی کو ایک آدم کے بیٹے سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایک سے نہ تولو، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو، 1,00,000 سے تولو۔ میرے بھائیوں تخیلاتی طور کے اوپر ان فرشتوں نے آدم کے 1,00,000 بیٹوں کو ایک پلڑے میں رکھا، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں رکھا، اور جب میرے نبی کا وزن ہوا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1,00,000 سے بھی نہیں تلے گا، 10,00,000 سے تولو، 1,00,00,000 سے تولو، 1 ارب سے تولو۔ جب میرے نبی کو 1 ارب سے تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا، کیا کیا جائے؟ اور ذرا اس بات کے اوپر غور کرو، آج آبادی 7 ارب ہے، صرف آج کی آبادی، اور 7 ارب کو بھی جب میرے نبی کے ساتھ تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا، ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے اس بات کو سمجھ جائیے، ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، اس انسانیت کے اندر سارے رسول موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر نبی کے صحابی موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے شہید موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے صدیق موجود ہیں کہ نہیں؟ اور جب میرے نبی کو پوری انسانیت سے تولا گیا اللہ کی قسم میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے بھائیوں یہ نبی کا ظاہر ہے، یہ نبی کا باطن ہے۔ آج میں آپ لوگوں کی توسط سے ان منکرین حدیث کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، نبی کا ظاہر بھی اعلیٰ ہے، نبی کا باطن بھی اعلیٰ ہے، لیکن بات نبی کی اعلیٰ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انکار حدیث کے نئے نئے مغالطے، انکار حدیث کے نئے نئے چکر عصر حاضر میں غامدی صاحب نے انکار حدیث کے سرحیل کا جو کردار ادا کیا، آپ کا اور ہمارا عقیدہ تو یہ تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں اہل سنت کا؟ اب بتائیے غامدی صاحب لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، انکار حدیث کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ ایک رسول اللہ کی بشری زندگی ہے، ایک رسول اللہ کی نبوی زندگی ہے۔ اگر یہ تقسیم جس طرح وہ چاہتے ہیں کر دی جائے، اگر جس طرح وہ چاہتے ہیں تو کون فیصلہ کرے گا یہ رسول اللہ کا فرمان نبوی ہے کہ بشری؟ یہ رسول اللہ کا قول نبوی ہے کہ بشری؟ اور آپ حیران رہ جائیں گے غامدی صاحب جو لوگوں کو مغالطہ ڈال رہے ہیں، یہی مغالطہ عبداللہ بن عمر بن العاص کو اس دور کے قریشیوں نے ڈالا تھا، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کیا قریشیوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی لکھ لیتا ہے، تو رسول اللہ کی ہر بات ہی لکھ لیتا ہے؟ رسول اللہ بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں۔ آپ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے آپ لکھ لیتے ہو، ذرا خیال کیا کرو۔ یہی انکار حدیث کا مغالطہ اس دور میں بھی ڈلا تھا، وہی مغالطہ۔ عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہنے لگے میں پہلے تجھے دیکھتا تھا تو لکھا کرتا تھا، اب تو لکھتا نہیں ہے۔ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ قریش مکہ نے مجھے یہ مغالطہ ڈالا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کا ایک عقیدہ اور منہج بیان کیا، وہ کیا تھا؟ اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔
रसूलुल्लाह की ज़ुबान से हक़ के अलावा कुछ नहीं निकलता। रसूलुल्लाह की जिस तरह ज़ात आला है उसी तरह बात आला है। रसूलुल्लाह की जिस तरह ज़ात आला है उसी तरह बात आला है। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह वही के ताबे बोलते हैं। रसूलुल्लाह की ज़ुबान से हक़ के अलावा कुछ नहीं निकलता। अहले सुन्नत का इसके अलावा भी एक अकीदा है। वो क्या है कि सिर्फ बात, सिर्फ कौल हक नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। इस आयत का जाके तर्जुमा पढ़ लीजिए और गामदी को इसका तर्जुमा सुना दीजिए। मुनकरीन हदीस के सारे फलसफे जमीन बोझ हो जाएंगे। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। जो तुमने आपके इल्म में होगा बनु नुज़ैर का सारा वाक़या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका मुहासरा किया तो क्या हुक्म दिया? ये खजूर के चंद दरख्तों को काट दो और चंद दरख्तों को छोड़ दो। हुक्म किसने दिया था? रसूलुल्लाह ने। हुक्म किनको दिया था? सहाबा को। हुक्म किसने दिया था? ये बात समझने की जरूरत है। हुक्म किसने दिया था? रसूलुल्लाह ने। क्या हुक्म दिया? चंद को काट दो, चंद को छोड़ दो। अब यहूदियों ने भी वही इनकार हदीस का फ़लसफ़ा, यहूदियों ने भी सहाबा को मुगालता डालना शुरू किया कि ये रसूलुल्लाह ने जो हुक्म दिया है, ये नबी हैं, ये पैगंबर हैं, ये रसूल हैं, ये दरख्तों को काटने का हुक्म देते हैं। जंगों में तो दरख्तों को काटने का हुक्म नहीं है। वसवसा डाला, मुगालता डाला, किसके हुक्म के बारे में? रसूलुल्लाह के हुक्म के बारे में। जब ये मुगालता सहाबा में आया, आसमान से आयतें उतरना शुरू हो गई। और ये भी आयत तब नाज़िल हुई, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन। और मेरे भाइयों, इस आयत को याद करो। अल्लाह क्या कह रहा है? नहीं तुमने दरख्तों को काटा और नहीं तुमने दरख्तों को छोड़ा। किसके हुक्म से? फबिइज़्निल्लाह, फबिइज़्निल्लाह, फबिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से नहीं काटा। और अल्लाह के हुक्म से जो काटे हैं वो तुमने अल्लाह के हुक्म से काटे हैं, और जिनको नहीं काटा वो भी अल्लाह के हुक्म से नहीं काटा। सारी दुनिया के मुनकरीन हदीस जमा हो जाएं। ये जो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि हुक्म मैंने दिया था। हुक्म किसने दिया था? हकीकत में रसूलुल्लाह ने। लेकिन अल्लाह कह रहा हुक्म मैंने दिया था। गामदी साहब पूरे कुरान पाक में वो हुक्म उठा के दिखा दीजिए जो अल्लाह ने दिया था। ये रसूलुल्लाह ही के हुक्म को अल्लाह कह रहा है मेरा हुक्म है। और जरा बात अगर आसान कर दी जाए तो मेरे भाइयों, कितनी आम फहम बात है। रसूलुल्लाह हज के मौके के ऊपर हज की बाद चीज़ों को बयान कर रहे हैं। एक सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं, आफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? रसूलुल्लाह इग्नोर करते हैं, फिर पूछते हैं, फिर इग्नोर करते हैं, फिर पूछते हैं। 3 दफ़ा पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया। थोड़ा अरसा गुजरा, रसूलुल्लाह ने बुलाया और कहा वो जो सवाल पूछता था वो कहाँ है? वो आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अहले सुन्नत के तीनों मसालक का ये अकीदा बयान किया। और ये अकीदा आज हमारा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ कुल्तु नअम, अगर मैं ये कह देता जी हाँ, यानी नून आइन मीम सिर्फ 3 हरफ कह देते। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कहते हैं तूने मुझसे सवाल पूछा था कि हर साल के लिए फर्ज है, लौ कुल्तु नअम लवजबत, अल्लाह की कसम अगर मैं कह देता फर्ज है तो मेरी उम्मत के ऊपर हमेशा के लिए फर्ज हो जाता। बात खत्म। रसूलुल्लाह की जिस तरह ज़ात आला, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आला। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात समझने के बाद भी आपसे एक शिकवा करना है, आपसे एक शिकायत करनी है। वो क्या है? पाकिस्तान बने हुए 70 बरस बीत गए, 75 बरस बीत गए। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्र है बुनियाद याद है, वरना हुक्मरान तो बुनियादों के ऊपर हमला आवर हैं और भूल चुके हैं। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था?
पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई, सेकुलर और लिबरल पार्टीज की हुकूमत आई। पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना था आज तक अगर नहीं आया तो पाकिस्तान में इस्लाम नहीं आया। बाकी लिबरल भी आए, सेकुलर भी आए, नून भी आई, पीटीआई भी आई, हर पार्टी ने हुकूमत कर ली। मौका नहीं मिला तो किसको नहीं मिला? इस्लाम को नहीं मिला। मौका नहीं मिला तो किसको नहीं मिला? इस्लाम को नहीं मिला। आज हमें शरह सदर के साथ, वुसअत ज़र्फी के साथ, वुसअत कल्बी के साथ मैं आज अपने देवबंदी भाइयों के स्टेज पे आया हूं, खुले दिल से आया हूं और इनको अपना भाई मानता हूं। ये लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। हम एक स्टेज पे क्यों आ रहे हैं? आज जरूरत इस अमर की है मेरे भाइयों, जहां तक इख्तलाफ है वो भी इकरार करना चाहिए, मुदाहनत भी नहीं होनी चाहिए। हम इबादत की अदायगी में और अकीदे में बाद जगह पे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन ईमानदारी से बतलाइए। मैं इसके अंदर बरेलवियों को भी शामिल करता हूं। क्या कोई देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, उसके नजदीक चोरी जायज है? शराब पीना जायज है? डकैती जायज है? जना जायज है? सूद जायज है? बताइए, जो मुआशरती मामलात हैं जो आपको दिन और रात फेस करने पड़ते हैं, रिश्वत जायज है? बेहयाई जायज है? बेपर्दगी जायज है? मामलात जितने भी हैं वो सारे इत्तफाकी हैं, वो सारे मुश्तरकात में शामिल हैं। ये आपको सेकुलर लोगों ने प्रोपेगेंडा डाला हुआ, ये जी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये आपको सिर्फ एक मुगालता और वसवसा डाला जाता है। अगर हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो क्या ये फिर हमें वोट दे देंगे? ये ऐसे बेईमान है, फिर भी नहीं देंगे। अगर हम एक स्टेज पे बैठेंगे ये हमें वोट देंगे? सेकुलर और लिबरल नहीं देंगे। ये आपके वोटों के ऊपर डाका डाल के हुकूमतें तो बनाते हैं, फिर जब इनकी हुकूमतें आती हैं ये खिलाफे इस्लाम ट्रांसजेंडर बिल को पास करते हैं। तीनों पार्टी ये जो ट्रांसजेंडर बिल है इस एक्ट की मंजूरी के अंदर शामिल है। अयाज सादक ने आखिरी इजलास में पेश किया, शीरी मिजारी इसकी स्पोक्समैन है, नवीद कमर इसको पेश करने वाले हैं। अफसोस और दुख आपको तो ये भड़काया जाता है कि इनके इख्तलाफात हैं, सारे मामलात हमारे मुश्तरक हैं, हदूदुल्लाह के निफाज के ऊपर कोई इख्तलाफ है नहीं। हम भी चाहते हैं कि शरई हद नाफिज हो जाए, देवबंद भी चाहते हैं, बरेलवी भी चाहते हैं, हम तीनों चाहते हैं कि मुल्क के अंदर से बेहयाई खत्म हो, ये फहाशी और उरियानी के जो बोर्ड हैं ये खत्म कर दिए जाएं, ये ट्रांसजेंडर बिल खत्म कर दिया जाए। लेकिन इन सारे इत्तफाकात को खत्म करने के लिए चंद इख्तलाफात को सामने लेके आया जाता है और उसकी वजह से आपके वोट बैंक के ऊपर डाका डाला जाता है, आपके वोट बैंक को मुंतशिर किया जाता है। और मेरे भाइयों आपसे ये शिकवा है, जिस तरह KPK के अंदर उलमा ने मेहनतें की और मौलाना फजलुर रहमान ने दीन पसंदों के वहां पे हलके बना लिए, आज पंजाब में भी इस बात की जरूरत है कि दीन पसंद, इस्लाम पसंद मुत्तहिद होके, मुत्तफिक होकर तीनों मसालक एक साथ मिलकर अपनी हल्का जाती सियासत का आगाज करे और पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर अपने नए हलके बनाए जो इस्लामी कुव्वतों की ताकत का मदर बन जाए। आपको ये काम करना होगा, आपको ये काम करना होगा। वजह आपने नून लीग को आजमा लिया और मेरे भाइयों PTI को आजमा लिया, पीपल पार्टी को आजमा लिया, हालात बदले, वही धीरी न बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। इस वतन के हालात अगर बदलेंगे, अल्लाह की कसम इस्लामी निज़ाम से बदलेंगे, इस्लामी कुरान से बदलेंगे, इस्लामी हदीस से बदलेंगे। मेरे भाइयों आपने ये फलसफा तो अपना लिया, हैरान होता हूँ मैं, पंजाबियों की अकल के ऊपर भी बंदा हैरान रह जाता है। चलो KPK के लोगों ने तो उलमा को अपने सर का ताज मान लिया, आप क्या हैं? आप कहते हैं जी मौलवी सिर्फ मस्जिद का, सिर्फ मिंबर रसूल का वारिस तो है, मौलवी मिंबर रसूल का वारिस तो है लेकिन तख्ते रसूल का वारिस नहीं है। सुभान अल्लाह, ये पंजाबियों की कुल अकल है। और आप ये कहते हैं कि मिंबर रसूल के ऊपर नेक आदमी होना चाहिए, मुत्तकी आदमी होना चाहिए। चलो ये भी अच्छी बात है, इतनी सोच तो मौजूद है कि मिंबर रसूल का जो वारिस है वो नेक और मुत्तकी हो। मेरे भाइयों, लेकिन ये सोच जब जाती है दूसरी तरफ
मिंबर रसूल का वारिस तो नेक और मुत्तकी हो, लेकिन तख्ते रसूल का वारिस चाहे चोर हो, चाहे लुटेरा हो, चाहे जानी हो, चाहे शराबी हो, आपकी गैरत गवारा कर लेती है। अजीब बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए हैं, अपने मुसल्ले के ऊपर, अपने तख्त के ऊपर, अपनी रियासत के ऊपर, अपनी सियासत के ऊपर किसको बिठा के गए हैं? हजरत अबू बकर को बैठा के गए हैं। हजरत अबू बकर को बैठा के गए हैं। हजरत अबू बकर को बैठा के गए हैं। इससे ये बात साबित होती है कि जो मिंबर रसूल का वारिस है वही तख्ते रसूल का वारिस है। और दूसरा मसला यहाँ से ये साबित होता है कि तख्ते रसूल का जो वारिस हो वो कम से कम 5 नमाजों की जमात के साथ इमामत करने वाला हो। हजरत अबू बकर इमाम थे या मुक्तदी थे? रसूलुल्लाह के तख्त के वारिस बने, 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ाते थे या पढ़ते थे? पढ़ाते थे। खुतबा खुद देते थे या सुनते थे? तो इस्लामी रियासत का हकीकी मानों में, इस्लामी रियासत का रसूलुल्लाह के तख्त का वारिस वही होना चाहिए जो 5 वक्त की नमाजों की इमामत करवा सकता हो, खुतबा आए उसका जुम्मे का खुतबा दे सकता हो। हमने मुगलों के बारे में बड़ी कहानियाँ पढ़ी, हम बड़े सगीर के माहौल में हैं। मुगलों के खिलाफ बहुत लिखा जाता है, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि जब फजर की अजान होती थी वही जमात कराया करते थे, जब खुतबा होता था वही जुम्मा पढ़ाया करते थे। तो तख्ते रसूल का वारिस आपने रसूलुल्लाह की इस हदीस को छोड़ दिया, फरामोश कर दिया, इसलिए पंजाब के अंदर इस्लाम पसंदों के हलके नहीं बन सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मेरे सियासी, अब ये बात जरा गौर से सुननी है कि बनी इसराइल के अंदर उन नबियों के वारिस कौन हुआ करते थे? नबी, जो उनके सियासी वारिस भी हुआ करते थे। मेरी उम्मत में नबी नहीं आएगा, मेरी उम्मत में नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत में उलमा आएंगे जो मेरे वारिस होंगे। अब बताइए, आपने भी रसूलुल्लाह को सिर्फ मस्जिद का इमाम मानना, दुख के साथ कहना पड़ता है, आपने रसूलुल्लाह को सिर्फ मस्जिद का इमाम माना, बाजार का ना माना, सियासत का ना माना, मामलात का ना माना, तख्त का ना माना, रियासत का ना माना। पाकिस्तान के हालात उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जिस तरह मुआविया आजम तारक को हमने असेंबली में भेजा। पंजाब के अवाम अगर उलमा को असेंबली में नहीं भेजेंगे, इस वतन के हालात नहीं बदल सकते। आप सब वादा करें कि आने वाले इलेक्शन में इस्लामी जमातों का इत्तेहाद वजूद में आता है तो उसको वोट डालेंगे, उसको वोट डालेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, नोट भी देते हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, आप सब साथी, ये मेरे देवबंद रुफाका और मेरे बरेलवी भाई भी, अगर हम तीनों एक हो जाएं तो बताइए किसी की जुर्रत है ट्रांसजेंडर एक्ट को पास करके दिखाए? अभी भी अल्लाह के फजलो करम से आपने भी मेरे साथ वादा करना है, अभी भी अगर ट्रांसजेंडर एक्ट को मुस्तरद ना किया गया, आप सब साथी मेरे साथ इस ख़ियाबान अमीन रोड पे एहतजाज करने के लिए तैयार है? लामा साहब कदम बढ़ाओ, लामा साहब कदम बढ़ाओ, हाथों में हाथ दो, उलमा का साथ दो, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, अब लामा का साथ दो, हाथों में हाथ दो, लामा साहब कदम बढ़ाओ। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, किफ़ाए सहाबा, उलमाए हक। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो वतन हासिल किया गया, उसके अंदर इस्लाम के साथ ऐसी बेवफाइयाँ होंगी।